تو چلو ہم اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ there are three laws for the solar radiation لاز. ایک تھا آپ کے ساتھ یہ اسکرین تھوڑا یہ بلر ہے کہ شاید میں نے پکچر کے وقت سے بلر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے ابھی تھوڑا آپ اس پہ سمجھ تو آ رہا ہے لیکن وہ جو اچھی اسکین کاپی ہے وہ آج میں بنا دیتا ہوں. وہ تو آسان ہے اس طرح آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے کہ یوٹیوب کا چینل جو ہے نا اس کے لیے وہ ہمارے آج کام کرے گا. ٹھیک ہے. سو وین ڈسپلیسمنٹ لا وینز ڈسپلیسمنٹ لا یہ اس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دس از اونلی اپلیکیبل ٹو بلیک باڈی. اور بلیک باڈی از دا باڈی وچ emit all absorbed radiation جو جتنی بھی ابزارو کرے وہ آسانی سے وہ کیا کرے ایمٹ کرے. تو اسی طرح آپ کے ساتھ جو ایسی باڈی ہو دس باڈی از کالڈ بلیک باڈی. ابھی بلیک باڈی کے لیے ایک ایکویشن ہے. اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنے کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے. اس کے اوپر دوستوں میں نے پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا لیکن وہاں پہ دوستوں آپ اس طرح کریں گے اپنے مائک کو پلیز وہ کلوز کر دیں. ٹھیک ہے. اور وینز جو ڈسپلیسمنٹ لائے یہ کیا شو کرتے ہیں the product of the wavelength and the temperature for a specific emissive power. مطلب ایک specific emissive power جو ٹیمپریچر پر جو specific wavelength والی لائٹ ہے وہ emit کرتا ہے. مطلب گرین لائٹ ہے بلو لائٹ ہے اس طرح مختلف قسم کی الٹرا وائلٹ سے وہ تعلق رکھتے ہیں انفراریڈ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو لائٹس ہے یہ ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر پر ایک جو ایمیسیو پاور لاس کرے گا. تو اس لیمڈا اور اس ٹی کی پروڈکٹ آپ کے ساتھ ایک کانسٹنٹ کے برابر ہوگا. وہ کانسٹنٹ ہوگا 2898. The product of the wavelength and the temperature T for a specific emissive power. پر ایک لائٹ ہے بلو لائٹ اس کا ویو لینتھ کیا ہے اور وہ جو ایمیسیو پاور ایمٹ کرتے ہیں کسی ٹیمپریچر پر ان دونوں کے پروڈکٹ کے ساتھ 2898 کے برابر ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہائی ٹیمپریچر ہو فار ایگزامپل ایسی باڈی ہے کہ وہ ہائی ٹیمپریچر ہو سن کنسیڈر کریں جب وہ ہائی وہ جب بلو لائٹ ایمٹ کرے گا تو بہت ہائی ٹیمپریچر پہ ایمٹ کرے گا. اس وقت اس کی جو لیمڈا ہوگا وہ اسمال ہوگا کیونکہ ان دونوں کے پروڈکٹ صحیح آنی چاہیے. اگر یہ بڑا ہے تو یہ چھوٹا ہونا چاہیے. اگر یہ چھوٹا ہے تو ٹی اسمال ہونی چاہیے. اگر اس طرح فار ایگزامپل زمین پہ کوئی باڈی ہو تو وہ کولڈ باڈی ہوتی ہے اس کی اتنی ٹیمپریچر نہیں ہوتی تو اس کا ٹیمپریچر کے ساتھ جب لیمڈا ملٹیپلائی کریں گے تو اس کے لیمڈا کی ویلیو بڑی ہونی چاہیے تاکہ اسے ویلیو 2898 آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باڈی لو ٹیمپریچر پر ریڈیشن کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا لانگ ویوز ہوں گی. اس کا ویو لینتھ لانگ ہوگا. اور جو ہارڈ باڈی ہوگا فار ایگزامپل سن اس کے ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ جو ریڈیشن کرتے ہیں اس کا ویو لینتھ کم ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ the radiation comes from the sun to the earth are called short waves. یہ ہمارے ساتھ short waves ہوتے ہیں. اور ادھر سپوز کوئی باڈی ایک ریفلیکٹر ہے سپوز اس نے جذب کر دیا ابزارب کر دیا ابھی وہ جو ایمٹ کرتے اس کا جو ریڈیشن ہوتا ہے وہ لانگ ہوتا ہے کیونکہ اس ریفلیکٹر کا جو ٹیمپریچر تھا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے نا. زمین پر فار ایگزامپل زمین اس نے ابزار کیا ابھی وہ ریڈیٹ کرتا ہے. زمین سورج کی نسبت بالکل کولڈ ہے ایک طرح کی تو وہ جو ایمیشن کرے گا اس کا آپ کے ساتھ ویو لینتھ کیا ہوگا لانگ ہوگا. سو دا جو اسمال ٹیمپریچر پر جو باڈی کا لو ٹیمپریچر ہو وہ جو ریڈیشن ایمٹ کرے گا اس کا ویو لینتھ لانگ ہونی چاہیے. اور جو ہارڈ باڈی ہو اس کا ٹیمپریچر ہائی ہوگا تو اس کے لیے ویو لینتھ کم ہونی چاہیے تاکہ ان کے پروڈکٹ اس کے برابر ہو جائے. اور اس کو شارٹ ویو اور لانگ ویوز بولتے ہیں. یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ سورج شارٹ ویو ٹرانسمٹ کرتے ہیں اور جو ریفلیکٹر ہوتے ہیں وہ لانگ ویوز ٹرانسمٹ کرتے ہیں. So the product of the wavelength and the temperature T for a specific emissive power must be equal to the constant 2898 for the black body. So lambda T is equal to 2898. یہ اس کے ساتھ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب باڈی کیا ہوتے ہیں the body which emit all the absorbed radiation is called black body. دوسرا ہمارے ساتھ جو لا تھا وہ تھا پلانکس ایکویشن. What is mean by Planck's equation? For example ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر پر ایک اسپیسیفک ویو لینتھ والی جو لائٹ ہے وہ کتنی ایمیسیو پاور ابزارو کرے ایمٹ کرے گا. پہلے کیس میں ہمارے ساتھ ایمیسیو پاور نون تھا لیمڈا اور ٹی کے پروڈکٹ اس کے برابر تھا. اگر لیمڈا معلوم تھا تو ٹی فائنڈ کرتا اگر ٹی معلوم تھا تو لیمڈا فائنڈ کر سکتا.
अभी हमारे साथ लेमडा भी गिवन है और टी भी गिवन है. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन लाइट है, इसका वेवलेंथ इतना है और इसी ही टेम्परेचर पर आप इसकी एमिसिव पावर आप फाइंड करें. So the emissive power for the specific wavelength radiation is given by Planck's equation. एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली और एक खास टेम्परेचर पर एक बॉडी जो इमिसिव पावर एमिट करता है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस पर ई लेमडा इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाय लेमडा के पावर 5 ई के पावर C2 डिवाइड बाय लेमडा t माइनस 1. अभी here C1 and C2 आर द कांस्टेंट, ये हमारे साथ जो न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें गिवन होंगे कि इसका वैल्यूज कितनी. इसके बाद ये हमारे साथ इमिसिव पावर आ गया और दूसरा हमारे साथ आ गया कि लेमडा टी आपके साथ कांस्टेंट के बराबर होगा. अभी सारा इमिसिव पावर हम कैसे फाइंड करेंगे, एक ब्लैक बॉडी के लिए एक बहुत से वेवलेंथ वाली उसने जज़ब किया है तो इसका सारा इमिसिव पावर उसने कितना एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, या कितना अभी वो बॉडी फिर दोबारा से इमिट करेगा, ब्लैक बॉडी इमिट भी करता है. So the total emissive power for the black body is the integral sum of E lambda of the spectrum distribution graph. अभी जो हमने ऊपर हमारे साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, इस डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ पे हमारे साथ अगर ये सपोज हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेवलेंथ वाली इसका हम टोटल पावर कंसिडर करते हैं. तो इसके लिए हमारे साथ ये स्मॉल सा पोर्शन आ गया. इस स्मॉल से पोर्शन के लिए ई लेमडा और ये जो डेल लेमडा है इसकी इंटीग्रेशन हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे तो हमारे लिए टोटल एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा. तो ये टोटल एरिया इस पोर्शन में हमारे साथ ये शो करते हैं कि 0.4 से 0.49 तक कितना टोटल इमिसिव पावर है. सो आपके साथ स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या शो करते हैं, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ये शो करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक ब्लैक बॉडी के लिए टोटल इमिसिव पावर अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे. तो इसके लिए आपने इंटीग्रेशन लेना होगा ई लेमडा वर्सेस डेल लेमडा. The total emissive power for the black body is the integral sum of E lambda of the spectrum distribution graph. इसको आप मैथमेटिकली इस तरह की EB का मतलब है the emissive power by the black body, एक के साथ बराबर होगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक E lambda into del lambda. और इसकी कैलकुलेशन से स्टेफन ने क्या इक्वेशन बना दिया, सिग्मा टी के पावर 4. सिग्मा टी के पावर 4 से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. अगर सिग्मा भी गिवन है और टी के पावर सिग्मा तो गिवन होगा, लेकिन टी अगर गिवन है तो आप फाइंड कर सकते हैं. अभी सिग्मा क्या है, दिस इज कॉल्ड द स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 5.67 into 10 के पावर 8 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड केल्विन के पावर 4. ये हमारे साथ वही तीन लॉज थे जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए. अब इसमें हम एक 3 टर्म्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज मीन बाय एमिसिविटी, what is mean by absorbability, and what is mean by reflectivity, and what is mean by transmittivity. ये 4 टर्म्स है, इसको हम अभी कंसीडर करते हैं कि what is mean by emissivity. ठीक है. सो emissivity का मतलब कि the ratio of the actual emissive power of the body to the emissive power of the black body. फॉर एग्जांपल आपके साथ एक बॉडी है, जो भी बॉडी आप कंसीडर करें, ठीक है, इस बॉडी का अभी इसका इमिसिव पावर कितना है, कितना पावर एमिट करते हैं. अगर इसी शेप में हम क्या करें, इसी शेप में अगर यही बॉडी यही साइज की अगर हम ब्लैक बॉडी करें तो इस ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर कितना होगा. तो इसको इसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इसको क्या जाते हैं इमिसिविटी. फॉर एग्जांपल आपके साथ एक आप सपोज इस तरह अर्थ क्या एक स्पेसिफिक पोर्शन कंसीडर करिए, आप एक बॉडी कंसीडर करें सपोज, ठीक है. वो क्या करते हैं, इस तरह बॉडी फॉर एग्जांपल आपके साथ कार है, वो ब्लैक कार है, वाइट कार है, जितनी भी है, वो क्या करेगा, इस पर जब लाइट आएगा वो एब्जॉर्ब करेगा, उसे दोबारा भी इमिट हो जाएगा. अभी ये कितना पावर इमिट करते हैं. इसी तरह इसी शेप में अगर हमारे साथ ब्लैक बॉडी वो कितना पावर इमिट करे, इन दोनों के रेशो को हम कहते हैं एमिसिविटी. सो द रेशो ऑफ द एक्चुअल इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी to the emissive power of the black body is called emissivity. E lambda divided by EB is equal to epsilon. E lambda divided by EB is equal to epsilon. अगर इसको epsilon से हम शो करते हैं, this is called emissivity. समझ आ रही है. हेलो जी सर, आ रही है. So emissivity का मतलब है the ratio of the actual emissive power to the actual
to the emissive power of the black body. This is called emissivity. E lambda is equal to E lambda divided by EP. ये हमारे साथ इक्वेशन के बराबर होगा, ठीक है. इसके बाद है एब्जॉर्बिलिटी, एक होते हैं रिफ्लेक्टिविटी और एक होते हैं ट्रांसमिटिविटी. अभी फॉर एग्जांपल सूरज से कंसिडर करें कि आपके साथ सन से रेडिएशन आ रहा है एक बॉडी पर, वो इसका फॉलिंग हो रहा है. अभी इस पर जब फॉल होते हैं तो इसके कुछ पोर्शन ये एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ये रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ इस बॉडी से पास हो जाएगा. सो अभी इसने कितना एब्जॉर्ब किया. सो एब्जॉर्बिलिटी इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है. इसको आप कोई और टर्म से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, अल्फा से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन फिर आप लिखेंगे कि एब्जॉर्बिलिटी इज इक्वल टू ए इस तरह. सो एब्जॉर्बिलिटी इज इक्वल टू अल्फा which is equal to the energy or power absorbed by the body to the total power. For example अभी टोटल पावर इतना रहा है, इसका कुछ पोर्शन इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ इधर एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा. अब इसने टोटल पावर का कितना पोर्शन किया कि एब्जॉर्ब किया. दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्बिलिटी. The power absorbed by the body to the total energy or power come toward the body. For example ये आप कंसीडर करें कि ये हमारे साथ एक बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से टोटल पावर या एनर्जी आ रही है, टोटल एनर्जी इस पर फॉल हो गया, तो इसका कुछ पोर्शन इस तरह रिफ्लेक्ट हो गया, इसका कुछ पोर्शन इधर खत्म हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, इसका कुछ पोर्शन इधर ट्रांसमिट हो गया. अभी एब्जॉर्बिलिटी क्या है, जितना पावर इसने इधर एब्जॉर्ब किया, इसको अगर इस टोटल पावर से डिवाइड करें तो ये आपके साथ आ जाएगा एब्जॉर्बिलिटी, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा. क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब पावर मस्ट बी लेस देन टोटल पावर. टोटल पावर का कुछ हिस्सा ही एब्जॉर्ब करेगा, सो इसका मतलब है कि दिस पोर्शन विल बी स्मॉलर, तो अल्फा की वैल्यू आपकी से लेस देन. इस तरह रिफ्लेक्टेड क्या होगा, द टोटल पावर, द रिफ्लेक्टेड पावर टू द टोटल पावर, रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू द टोटल एनर्जी इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिविटी. अब इसको रो से डिनोट होते हैं, इसकी वैल्यू भी 1 से कम होगा. इस तरह ट्रांसमिटिविटी होगा, द पावर ट्रांसमिटेड by the body to the total power come toward the body is called transmittivity. इसको टा से डिनोट हो रखे, टीनी इस तरह टा, सिंबल को टा बोलते हैं, ठीक है. ये जो नजर आ रहा है इस तरह टा. सो अभी अगर आप देख ले, सो अल्फा भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है, और ये भी लेस देन 1. अभी इन तीनों का सम 1 के बराबर हो, क्योंकि आपके साथ ये टोटल एनर्जी हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिटेड, कुछ एब्जॉर्ब और कुछ रिफ्लेक्टेड एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड. अब इन तीनों का सम आपके साथ इसके बराबर होगा. इसका मतलब है कि अल्फा प्लस रो प्लस टा इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन. ये आपके साथ इक्वेशन आ जाएगा. हम क्या बोल रहे थे कि एब्जॉर्बिलिटी क्या होते है, द पावर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, द पावर और एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय टोटल एनर्जी और पावर. अगर आप पावर कंसीडर करिए या एनर्जी, ठीक है, तो आप दोनों कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है. ट्रांसमिटिविटी क्या होगा, द एनर्जी ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय टोटल, इसका नाम होता है ट्रांसमिटिविटी. अभी इन तीनों से इक्वेशन से क्या, अल्फा प्लस रो प्लस टा इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ये सेटिस्फाई करेगा. सो दीज आर द 3 टर्म्स, एब्जॉर्बिलिटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी. और एक है एमिसिविटी, एमिसिविटी इनसे अलग है, ठीक है. अभी जो एमिट कर रहा है इसका नाम है एमिसिविटी. अभी आपके साथ है रेडिएशन फ्लक्स. रेडिएशन फ्लक्स के फॉर एग्जांपल ये बॉडी, इस बॉडी ने कुछ अभी एब्जॉर्ब किया, ये अभी एमिट करते हैं, ठीक है. सो ये पर यूनिट एरिया से कितना रेडिएशन पास करेगा, इसका नाम है फ्लक्स. फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस. मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस. अभी आपके साथ है रेडिएशन फ्लक्स. सो द पासिंग ऑफ द पावर रेडिएशन थ्रू अ गिवन एरिया, जो गिवन एरिया से कितनी पावर पास होता है, इसका नाम है रेडिएशन फ्लक्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी, ये बॉडी भी सपोज इस तरह एमिट करते, तो इधर अगर आप यूनिट एरिया कंसीडर करें तो इससे कितनी एनर्जी पास होगा, इसका नाम है एमिसिविटी, इसका नाम है सारी रेडिएशन फ्लक्स. द पावर पासिंग थ्रू द गिवन एरिया इज कॉल्ड रेडिएशन फ्लक्स. सो रेडिएशन फ्लक्स का
power divided by area. Power का यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया. समझ आ रही है ये? कुछ रिस्पांस उद्देश्य होने? यस सर, समझ आ रही है. ठीक है. किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ आपके लिए क्या शो करता है? आपके साथ it show the relation between the emissivity and absorbability. emissivity और absorbability के दरमियान रिलेशन शो करते हैं. अगर आपके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि जितनी पावर इसको अभी आते हैं इतने से फॉर एग्जांपल बॉडी, अगर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हम रख दी तो जितना इसको इन साइड फ्लो करेगा इतना इससे आउटसाइड फ्लो करेगा. इसका नाम होगा थर्मल इक्विलिब्रियम. सो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम हो, एट थर्मल इक्विलिब्रियम द एमिसिविटी मस्ट बी इक्वल टू एब्जॉर्बिलिटी. एक बॉडी के लिए एमिसिविटी और एब्जॉर्बिलिटी क्या होगा? सेम होगा. कब? जब दोनों का पावर, जब आपके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम होगा. अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो एक बॉडी का एमिसिविटी और एब्जॉर्बिलिटी क्या होगा? सेम. इसका मतलब है कि जितना वो एब्जॉर्ब करेगा इतना ही एमिट करेगा. जैसे कि ब्लैक बॉडी, अभी वो आइडियल जो बॉडी है ब्लैक बॉडी, उसके लिए ये किरचॉफ्स लॉ बिल्कुल एप्लीकेबल है. तो क्या करते हैं, जितनी पावर वो एब्जॉर्ब करते हैं इतनी क्या करते हैं? एमिट करते हैं. लेकिन बाज इस तरह होते हैं, आइडियल में इस तरह, रियल में इस तरह, प्रैक्टिकल में इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता. लेकिन ये सबसे अच्छा अप्रोच है. अब हम इसके फॉर एग्जांपल अगर अभी हमारे सब 5% अगर हमारे से ज़ाय होते तो हम इसका अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि तकरीबन ये किरचॉफ्स लॉ ओबे करते. सो एट थर्मल इक्विलिब्रियम the emissivity must be equal to absorbability. एक बॉडी की जितना पावर एब्जॉर्ब करना है और इतना ही एमिट करता है. तो इस वक्त थर्मल इक्विलिब्रियम हो तो इसका मतलब है कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम हो तो ये दोनों इक्वल होंगे. इसका नाम है किरचॉफ्स लॉ. ठीक है. अभी आपको मालूम है कि देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स. वन इज कॉल्ड लॉन्ग वेव्स एंड वन इज कॉल्ड शॉर्ट वेव्स. एक होते हैं लॉन्ग वेव्स और एक होते हैं शॉर्ट वेव्स. अभी ये काम कि लेमडा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. लेमडा और टी के प्रोडक्ट के साथ कांस्टेंट होनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि अगर लेमडा इज इक्वल टू सी बाई टी, सी कांस्टेंट है तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. इसका मतलब है कि लेमडा और टेम्परेचर के दरमियान इनवर्स रिलेशन. अगर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि लेमडा इसके लिए कम है. अगर टेम्परेचर कम है तो इसका लेमडा ज़्यादा होगा. सो जिसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसके लिए लेमडा कम होगा. इसका है शॉर्ट वेव. जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा, लेमडा ज़्यादा, इसका मतलब है लॉन्ग वेव्स. ठीक है. अभी सपोज अगर आप ये कंसिडर करिए लॉन्ग वेव्स. दीज आर द लॉन्ग वेव्स. ठीक है. इसका लेमडा 1 है. अभी इसका ये जो लॉन्ग वेव्स है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है. कैसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? ये आपके साथ है कि फॉर एग्जाम्पल सूरज सुबह सवेरे अगर आप देख लीजिए जब सूरज आपके साथ क्या होते हैं निकलता है, जस्ट द सन राइजेस. इस वक्त आपके साथ सूरज क्या होते हैं इस तरह रेड नजर आते हैं, रेड. ठीक है. अब ये रेड क्यों नजर आते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अर्थ. ये आपके साथ अर्थ है और ये सन और इसका अर्थ एटमॉस्फेयर है. दिस इज अर्थ एटमॉस्फेयर. तो सूरज जब सुबह निकलते हैं तो ये सन इस साइड पे होते हैं, फिर इस तरह आती हुई इधर आ पहुंचता है. ठीक है. ये सपोज 12 बजे इधर सन आता है. ठीक है. एग्जैक्ट सूरज के ऊपर और फिर इस तरह कुछ दूर होते हैं. अभी जब ये सूरज इधर है इसका मतलब ये है कि इसकी सन रेज जब इधर पहुंचेंगे तो इसके लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा, लॉन्ग डिस्टेंस. और जब इधर है तो ये आपके साथ डायरेक्ट इसके लाइट आ सकते हैं तो इसकी जो रेस है इसके लिए शॉर्ट कम डिस्टेंस कवर करना होगा. अभी अगर आप देख ली सूरज की लाइट ये 7 लाइट से बनी है. विज्ञान में हमने पढ़ा है विज्ञान की अगर आप देख ली तो आर आपके साथ लास्ट में आते हैं. ठीक है. तो इसका जो ये देखिए तो इसका रेड जो होते हैं आप गूगल पे थोड़ा सर्च भी करके इसका कितना वेवलेंथ होता है आपको फिर पता चल जाएगा. लेकिन आप याद रखिए कि जो रेड का वेवलेंथ है वो क्या होगा? कम होगा.
सारी वेब का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वेब गियर VIBGOYR जो लास्ट में है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जो स्टार्ट में होता है उसका वेवलेंथ कम होता है, ठीक है। अभी रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, जो वेवलेंथ इसका ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि दीज आर लॉन्ग वेव्स, लॉन्ग वेवलेंथ वेव्स, और ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। और इसके अलावा जितनी भी आवर लाइट्स है वो इतना डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो नहीं आती। तो ज़मीन तक कौन सी लाइट सिर्फ आती है? रेड, मजीद नहीं आ सकती। जो आवर लाइट्स है यार में आवर जो लाइट्स है वो नहीं आती, जस्ट रेड आती है सुबह के वक्त। इसलिए हमारे साथ सूरज की कैसे नज़र आते हैं? रेड इन द किस वक्त हमारे साथ सुबह सवेरे। अगर आप फिर दोपहर का नसीब ज़्यादा يومين وبديت نقدر يدخل हेलो। तो अगर अभी दोपहर का टाइम अगर आप कंसिडर करें तो इस वक्त आपके साथ सूरज रेड नहीं है नज़र आता, क्योंकि इस वक्त आपके साथ ये बिल्कुल सेंटर पे होते हैं और इसके लिए कम डिस्टेंस तय करना होगा। तो ये सारी आवर जो है इसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। इसका वेवलेंथ कम है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी लाइट्स इस वक्त आती है जो दोपहर का टाइम हो, तो दोपहर के टाइम में सूरज आपको रेड नज़र नहीं आता, वाइट नज़र आते हैं। लेकिन जो सुबह के सवेरे होते हैं आपके साथ रेड नज़र आते, क्योंकि और जो लाइट्स होते हैं वो इसके वेवलेंथ शॉर्ट होते हैं, वो इतना डिस्टेंस कवर नहीं करता, तो इसलिए वो क्या करते हैं, जस्ट रेड लाइट ज़मीन तक पहुँचते हैं, जिसकी वजह से सूरज आपके साथ रेड नज़र आ रहा है। अभी इसके अलावा अगर आप दूसरा कंसिडर करें शॉर्ट वेव्स, दीज आर शॉर्ट वेव्स। शॉर्ट वेव्स का मतलब है कि लेमडा आपके साथ क्या स्मॉलर होगा, ठीक है। जब लेमडा स्मॉलर होगा तो इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा इसलिए होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट आपके साथ क्या होगा, इस इन दोनों का प्रोडक्ट आपके साथ कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपके साथ लेस डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। और इसका जो पेंट्रेशन पावर है, ठीक है, ये सबसे हाई होगा, और इसका जो पेंट्रेशन पावर है वो क्या होगा, कम होगा। अभी इसके एग्जांपल हम कैसे देखते हैं कि जो स्मॉल वेव्स है वो डिस्टेंस कम कवर करते हैं, जो ऐसी वेव्स जिसका वेवलेंथ स्मॉल है वो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कवर कर सकता। तो सपोज अगर आप इस डायग्राम को फिर से देख लीजिए, जो डायग्राम है, ठीक है, ये आपके साथ ज़मीन है और ये इसका एटमॉस्फेयर पोर्शन है, और यहाँ सपोज सूरज है। सूरज से आपके साथ किया जाएगा, वेव्स इधर एंटर हो जाएगा। अभी वेव गियर में अगर आप देख ले तो ब्लू ब्लू पहले आते हैं, ब्लू का जो ब्लू वेव्स है इसका वेवलेंथ कम है। जब इसका वेवलेंथ कम है तो ये डिस्टेंस कम तय करेगा। जब इधर आ जाएगा तो इस तक डिस्टेंस यहाँ तक वो नहीं जाएगा, तो इधर स्केटर होगा, इधर ये एटमॉस्फेयर से ऊपर इधर स्केटर होगा। जो आवर लाइट है, रेड है, येलो है, वो इधर आ जाएगा। लेकिन ब्लू जो होगा, ब्लू इस तरह वायलेट ही जो है ये आपके साथ इनसाइड इधर नहीं आएगा, बल्कि इधर इसका क्या होगा, स्केटरिंग इधर होगा। ये जो रेज है ये स्केटर हो जाते हैं, इधर आ रहा था। लेकिन ये जो उनके शॉर्ट वेव्स है ये लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं कर सकता, सो इधर ये एटमॉस्फेयर से इधर स्केटर हो गया। अब ब्लू लाइट इधर स्केटर हो गया, दैट इज वाई आपके साथ जो स्काई है वो ब्लू नजर आते हैं। स्काई इसलिए ब्लू नजर आते हैं कि इधर इसके जो वेव्स एंटर होते हैं, इसमें जो ब्लू वेव्स है इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, इसके लिए टेम्परेचर हाई होगा और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, बड़ी है, और ये आपके साथ लेस डिस्टेंस तय करेगा। तो जब ये इसके इनसाइड पे इंटर होगा तो यहाँ तक आना इसके लिए मुश्किल होगा, तो ये क्या होगा, एटमॉस्फेयर से पहले पहले क्या होगा, स्केटर होगा। स्केटर मतलब जैसे बखोरीश। तो इसका मतलब ये है कि
ये इधर स्कैटर होगा, दैट इज व्हाई द सन स्काई यू सी द ब्लू, आपको स्काई कैसे नजर आएगा, ब्लू। समझ आ रही है? हेलो यस सर, यस सर। सो आज में इस क्लास में अभी हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा कि जी सर। तीन लास्ट हमने पढ़ ली। ये मैं फिर शॉर्टली रिव्यूज करता हूँ, ठीक है? अभी सेशन में 5 मिनट बाकी है, ठीक है? सो इसमें मैं इसका थोड़ा रिवीजन करता हूँ, फिर कमिंग सेशन जो स्टार्ट करके इसमें मजीद हम पढ़ेंगे। सो ये जो आपके साथ फर्स्ट हमने ये पढ़ा कि विंड डिस्प्लेसमेंट लाइक है द प्रोडक्ट ऑफ द लैम्डा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और प्लैंक्स इक्वेशन ये शो करते हैं कि एक स्पेसिफिक लैम्डा और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर आप इमिसिव पावर कैसे फाइंड करें। और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये शो करते हैं कि अगर आप ब्लैक बॉडी के लिए टोटल पावर फाइंड करते हैं तो एक के साथ सिग्मा टी के पावर 4 के बराबर होगा, ठीक है? ये आपके साथ होगा। और इमिसिविटी क्या चीज होती है, तो ये हमने बोला कि एक्चुअल इमिसिव पावर टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। observability क्या होगा, the power absorbed by the body to the total energy। इस तरह reflectivity क्या होगा, total power divided by total energy। और इस तरह transmittivity क्या होगा, the power transmitted divided by total। फॉर एग्जाम्पल ये टोटल पावर आ रही है तो कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा। इस ये पावर इसके रेशो अल्फा के बराबर है, ये पावर और ये इंसिडेंट पावर के रेशो रो के बराबर है, और जो ट्रांसमिटेड पावर है और जो इंसिडेंट पावर है इनके रेशो के साथ टी के बराबर है। अल्फा प्लस रो प्लस टाई इज इक्वल टू 1। रेडिएशन फ्लक्स हमने डिफाइन किया कि जितनी भी पावर एरिया से पास होती है इसका नाम है रेडिएशन फ्लक्स। किरचॉफ्स लॉ हमने पढ़ लिया। किरचॉफ्स लॉ ये था कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो एमिसिविटी और एब्जॉर्बिलिटी इक्वल होगी। फिर हमने एक इन थी की बिना पर हमने ये कंसीडर किया अगर लॉन्ग वेव्स है तो इसका बिहेव क्या होगा, अगर शॉर्ट वेव्स है तो इसका बिहेव क्या होगा। जो लॉन्ग वेव्स है इसके लिए लैम्डा बड़ी होगी, टेम्परेचर कम होगा और ये म्यू फ्रीक्वेंसी कम होगा और ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे कि वीआर में अगर आप रेड देखें तो रेड इधर लाइक करते, वी इधर लाइक करते, इस तरह ब्लू, इस तरह रेड इधर। इसका मतलब इसका वेवलेंथ बहुत बड़ी है। जब ये बहुत बड़ी है तो इसका टेम्परेचर कम होगा और ये लॉन्ग डिस्टेंस तय करेगा। तो सूरज इधर होते सुबह की सवेरे, इसके लिए ज़्यादा डिस्टेंस तय करना होगा, दोपहर में कम डिस्टेंस तय करना होगा। सो इस वक्त जो आवर रेज है वो इतना डिस्टेंस तय नहीं कर सकती जैसे रेड तय कर सकते, इसलिए सूरज रेड नजर आते हैं। और इस वक्त आपको वाइट नजर आती है क्योंकि अभी आपके साथ जो आवर भी लाइट है वो क्या करते हैं, आसानी से जमीन तक आ सकते। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ अगर शॉर्ट वेवलेंथ है, शॉर्ट वेवलेंथ तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ये लॉन्ग डिस्टेंस तय करेगा, डिस्टेंस तय करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लू लाइट कंसिडर करें, ये आपके साथ वीआर में पहले आता है, इसका वेवलेंथ कम होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। सो ये इधर एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं होगा बल्कि स्कैटर होगा। सो दैट इज व्हाई द सन द स्काई इज आपको स्काई जो नजर आता है वो आपके साथ क्या होगा, ब्लू होगा, ठीक है? अभी आते हैं हम एक न्यूमेरिकल्स की तरफ। हम एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं कि ये न्यूमेरिकल क्या है। इस न्यूमेरिकल को अगर हम कवर कर दें इस सेशन में तो ठीक है, क्योंकि अभी तकरीबन 3 मिनट है। So determine the range of the wavelength in which the Earth is emitting radiation if we assume Earth is black body and the temperature range of 250 to 300 किलोवाट। क्वेश्चन क्या है कि आप ये जो 250 के से लेकर 300 के तक इस रेंज में ये जो पावर रेडिएट करते हैं ज़मीन पे सूरज से आ गया रेडिएशन, अभी ये रेडिएट करते। सो ये जो रेडिएट करते ये आपके साथ ये जो इमिट करते रेडिएट करते तो ये आपके साथ किस रेंज में लाई करेंगे। ये इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट है, इधर आया ये आपके साथ के विजिबल रेंज में लाई करते। ठीक, डिटरमाइन द रेंज, आप रेंज डिटरमाइन करें। रेंज का मतलब है कि आप ये फाइंड करें कि ये आपके साथ कौन सी रेंज में है, अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है। ऑफ द वेवलेंथ इन विच द अर्थ इमिटिंग रेडिएशन, जिसमें ज़मीन रेडिएशन इमिट करता है।
اور آپ ایزیوم کریں کہ زمین بلیک باڈی ہے. اس پر سورج سے جتنے بھی فار ایگزامپل اگر آپ دیکھ لیں تو صبح سورج آتی زمین ابزارو کرتے ہیں اور شام کے وقت یہ دوبارہ سے کیا کرتے ہیں ایمٹ کرتے ہیں. سو ابھی یہ جو ایمٹ کرے گا تو اس کا بیہیو کیا ہوگا. ابھی آپ کے ساتھ رینج ہے ایک ہے 250 اور ایک ہے 300. انیشیل پوائنٹ ہے اور فائنل پوائنٹ ہے. ابھی انیشیل پوائنٹ پر یہ کتنی ویو لینتھ کا ویوز ایمٹ کرے گا. تو اس کے لیے جی بس تاسو چې راشي چې وته بیا ورکوم اس کے لیے یا یہ ټوډری لګا تاسو له راشي کم ټوډری له راشي کم ځای ته راشي کہ مائک بند کا کرنا ساوي کې دا بیا بس دا ما ته راګي چې وته بیا زهیر دیکھا نا خو نارمل داخله او 40 د زماش نه تاره سو آپ کے ساتھ لیس دین 1 منٹ ہے ٹھیک تھا نا وہ دفتر کې ورته لیس دین 1 منٹ ہے پر یہ بل سیشن کی